Good morning, students. Today is the third lecture in which we are going to discuss further from K-map. In the last class, we discussed about how truth tables are used to convert my Boolean algebra into a circuit, and then I am using K-map to optimize my circuits, right? Today we will be discussing a few things related to my circuits. The first one being combinational circuit. Combination, as the name suggests, it is a combination of gates that are used to create a circuit that resolves some Boolean algebra. Okay, input जाता है, I have a circuit that gets input and it produces output. Now why is it called a combinational circuit? Because it is a combination of logic gates. हमने कौन से logic gates पढ़े थे? And, or, not, NAND, NOR, XOR, XOR. ठीक है? We are aware of their logic. इन लॉजिक गेट्स को जब हम कंबाइन करके एक algebraic फंक्शन को रिप्रोड्यूस करते थ्रू अ सर्किट, इट मेक्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 इनपुट है A, B, C और मुझे एक आउटपुट चाहिए A एंड B XOR C, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ XOR एंड AND गेट. समझ आई बात? ओके. नाउ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द करंट वैल्यू ऑफ द इनपुट. इसका मतलब क्या है कि जो करंट इनपुट जा रहा है मेरा उस सर्किट में, ए बी और सी मेरा इनपुट है ना, जो इस वक्त ए बी और सी की वैल्यू जा रही है 1 1 1, उसके बेसिस पे एक आउटपुट आएगा. ठीक है? अब हो गई 1 1 0, आउटपुट उसके बेसिस पे आएगा. आउटपुट विल बी बेस्ड ऑन द करंट इनपुट. फिलहाल के लिए जो इनपुट जा रहा है मेरे कॉम्बिनेशनल सर्किट में, उससे आउटपुट प्रोड्यूस होगा. आउटपुट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर. ठीक है? आप आगे देखोगे सीक्वेंशियल सर्किट में प्रीवियस रिजल्ट पे भी डिपेंडेंट होता है. ठीक है? लेकिन कॉम्बिनेशनल बहुत ही सिंपल फंडा है, जो इनपुट आ रहा है उससे आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. बात समझ आ गई? Why is it called combinational circuit? Because it is made of combinations of logic gates and it is based on the current value of the input for which it produces a certain output. Okay? Moving on to the block diagram of a combinational circuit. I have n inputs. कितनी भी input हो सकती है ना? अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था how my binary input value is calculated. Number of inputs determine the number of values that can be generated. अगर मेरी 2 इनपुट है तो मेरी कितनी वैल्यूज आएगी? 2 raised to the power 2 which is 4. वैसे अगर 3 इनपुट है 2 raised to the power 3. n इनपुट है तो 2 raised to the power n. ठीक है? It produces m outputs. Okay. Looking at the logic diagram, just for analysis, the likha it's for the purpose of analysis, we see how many gates here. How many gates are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. All right? 9. I forgot the little knot. Okay? So we have a combination of 9 gates that is producing an output F1 and F2. Guys, please look, F1 and F2 are 2 outputs that are being taken out of these many inputs A, B, C. ठीक है? Is this clear? This is the intricate logic gate diagram of my combinational circuit. Can we make these? हमने पिछली क्लास में जब K-map को simplify करके अपना सर्किट बनाया था, didn't it look like this? It was a combinational circuit ना? Yes? All right. Moving forward, a few examples of combinational circuits are, we can say an adder, जो binary digits को add करता है, subtractor, जो subtract करता है. All these operations are being carried out.
by my combinational circuits, and also we have multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder, about which we will be studying in the subsequent classes. Okay? फिलहाल के लिए let's start with how we need to design my combinational circuit. एक प्रोसीजर होना चाहिए ना कि किस लॉजिक से मैं अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाऊंगी. सर्किट तो बनाना पड़ेगा. हमने शुरू से क्या देखा है, हमारे पास इनपुट की वैल्यूज़ आती है और हमें पता है क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है. उस ऑपरेशन के थ्रू हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उस ट्रूथ टेबल को हम के मैप में डालते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं और हम क्या बनाते हैं फिर उसके बाद सर्किट. ये प्रोसेस फॉलो हो रहा था, हाँ या ना? ठीक है. सो पहले हम प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेंगे. प्रॉब्लम मतलब हमें किस चीज़ का सल्यूशन ढूंढना है. ठीक है. उसके बाद इनपुट स्लैश आउटपुट. सर्किट में इनपुट क्या जाएगा और आउटपुट क्या आएगा. ठीक है. ट्रूथ टेबल, सिंप्लीफिकेशन, ड्रॉ द सर्किट. सिंप्लीफिकेशन का मतलब माय के मैप. ठीक है. यही स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे. दिस इज व्हाट वी फॉलोड इन द लास्ट क्लास. Let's come to the first circuit, half adder. अब it is called half adder. We'll know why. पहले देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है. So my problem is I have two single bit binary values. मेरे पास दो सिंगल बिट की बाइनरी वैल्यू. सिंगल बिट मतलब एक ही बिट है. बाइनरी मतलब वो या तो 0 है या 1 है. ठीक है. वी आर क्लियर विद दिस. x और y. इनपुट क्या है मेरी, x है और y है. x सिंगल बिट है, y भी सिंगल बिट है. क्लियर. नाउ दिस प्रोड्यूसेस अ सम कॉल्ड s. एक सम आ गया s और आ गया एक कैरी. कैरी आया c. ठीक है. बाइनरी एडिशन में there is a carry also which is generated in a case. I will tell you what is that case. बट फिलहाल हमने सिर्फ प्रॉब्लम डिस्क्राइब की है. हमारे पास दो इनपुट वैल्यूज़ है x और y. दोनों सिंगल डिजिट का बाइनरी डिजिट है, बाइनरी नंबर है. ठीक है. वो दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं दो आउटपुट, एक सम s और एक कैरी c आउट. वी आर क्लियर. प्रॉब्लम हो गई. मैंने अपने इनपुट और आउटपुट बता दिए. खत्म कहानी. नाउ this operation is called half addition and the circuit to realize it is called a half adder. इसको हम half addition कहते हैं. ठीक है. और इसमें हमारे पास जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, ये ब्लॉक डायग्राम है इसका, ये सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है. इसको कहते हैं हम हाफ एडर. सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे देखो. अगर मैं बात करूँ मेरी इनपुट की, तो जब बाइनरी एडिशन की बात हो तो लॉजिक ये फॉलो होता है. ठीक है. रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन कहता है कि जब मैं 0 और 0 को ऐड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 0. जब मैं 0 और 1 को ऐड करूंगी या 1 और 0 को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा. और अगर मैं 1 और 1 को ऐड करूंगी तो मुझे सम मिलेगा 0 और कैरी मिलेगा 1. 1 0 का मतलब है 1 इज द कैरी एंड 0 इज द सम. इज दिस रूल क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट इन योर ब्रेन ऑफ दिस. ओके, आई विल वेट फॉर 2 minutes. Please look at this because this is the concept that's going to be followed in the half adder and the full adder, of course, because we are going to do binary addition. Alright, let's come back to the half adder. Now, what did it say? It said this, right? यही रूल था ना कि 1 जब भी होगा, एक इनपुट 1 होगा तो मेरा सम 1 होगा, और जब दोनों 1 होंगे तो मेरा सम 0 और कैरी होगा 1. Are we clear with this truth table according to the binary addition logic? Okay, so we are clear. Now, ये कह रहा है कि मेरा सम इसका बुलियन अलजेब्रा में कैसे डिड्यूस करूँगी. सम मेरे को कब मिल रहा है, when is the sum creating an output 1
It is when one of it is active and the other is inactive. अगर एक एक्टिव है तो दूसरा इनएक्टिव है, डैश है ना, डैश का मतलब नॉट. अगर एक 1 है तो दूसरा क्या है, 0. अगर ये 1 है तो ये क्या है, 0. दोनों में से अगर एक एक्टिव हुआ तो मेरे को क्या मिला, 1 मिला आउटपुट ट्रूथ टेबल में. इस लॉजिक से अगर मैं इस टेबल को देखूं तो ये किसका टेबल है, कौन से गेट का टेबल है ये, XOR गेट, XNOR गेट, बताओ. ओके, 0 1 1 0 XOR गेट था ना, हाँ या ना. ऑल राइट, सो वी हैव द XOR गेट इन बिटवीन x एंड y, यस और नो. उसी का लॉजिक है ना ये मैंने x डैश y और x y डैश कहाँ से लिखा, इधर से लिखा. x डैश y x y डैश जब जब होता है तब तक मेरा सम प्रोड्यूस हो रहा है. यही तो के मैप में हमने समझा था. मेरे पास इधर आ गया मेरा इक्वेशन सम का. कैरी कैसे जनरेट हो रहा है, कैरी इज जनरेटेड वेरी सिंपली बाय x एंड y. एंड का है ना ये, सी आउट का देखो टेबल, किसका टेबल है ये, एंड का टेबल है ना. whenever both the inputs are active the output is active. किसका टेबल बना, ये एंड का बना ना, तो x डॉट y. ठीक है, हमारे पास कैरी और सम का फंक्शन आ गया. अब इसको हमने सर्किट में डिड्यूस करना है, तो हमें सर्किट के लिए क्या चाहिए, ओके, a little bit of mistakes. I think I went too further away. All right, so can we have this circuit? Look, ये मेरा जेनेरिक सर्किट है. S क्या था, x y डैश एंड x डैश y. तो मेरे पास इसमें कितने गेट्स थे, x डॉट y डैश, एंड गेट, और गेट, एंड गेट. 3 गेट्स थे और एक नॉट गेट क्योंकि नॉट करना था. आर वी क्लियर? और मेरे कैरी के लिए क्या था, एक ही गेट था, एंड गेट. अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके जब मैंने अपना सिंप्लीफिकेशन की तो मुझे क्या सर्किट मिला, ठीक है, x XOR y, x एंड y. दोनों को देख के बताओ कौन सा सर्किट सिंपल है. दोनों सेम काम कर रहा है, ठीक है, दोनों सेम काम कर रहा है, हाँ या ना. बट सिंपल कौन सा है, दैट इज वाई सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप इज इम्पॉर्टेंट. सो what did we do डिजाइनिंग दिस कॉम्बिनेशनल सर्किट. सबसे पहले हमने प्रॉब्लम बताई, हमें एडिशन करना है, ठीक है, 2 सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर्स का. मेरी प्रॉब्लम हो गई. इनपुट और आउटपुट मैंने क्या बताया, मेरी इनपुट है x y, आउटपुट है s और c आउट. फिर उसका मैंने ट्रूथ टेबल बनाया, मैंने उस ट्रूथ टेबल के थ्रू उसको सिंप्लीफाई किया और सर्किट बना लिया. have we got a combinational circuit now, yes or no? yes definitely. अब हाफ एडर में कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, अब वो ड्रॉबैक हमने फुल एडर में किए. अब देखो क्या ड्रॉबैक था और फुल एडर में क्या एडवांटेज था. एडिंग 2 सिंगल बिट बाइनरी वैल्यूज, ये तो हम हाफ एडर में भी कर रहे थे, विद अ कैरी इनपुट बिट सी इन which produces a sum bit s and a carry. oh god, हमने कैरी जो जनरेट हुआ था उसको कंसिडर किया था हाफ एडर में. अगर कैरी बीच में जनरेट हो गया तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, हम तो सिर्फ 2 बिट्स को ऐड कर रहे हैं. अगर
1 1 और उसके बाद 2 डिजिट और है, 1 1 ने प्रोड्यूस किया कैरी। अब वो 3 डिजिट्स को कैसे ऐड करेगा, सोचा है? हाफ एडर क्या 3 डिजिट्स को ऐड कर सकता था? अगर कैरी प्रोड्यूस हो जाता तो वो कैसे ऐड करता? वो कर ही नहीं सकता। उसकी कैपेबिलिटी सिर्फ 2 डिजिट्स को ऐड करने की है, हाँ या ना, है ना? तो अब इस कैरी को हम कैसे कंसिडर करेंगे, इस वजह से बन गया मेरा फुल एडर। हाफ एडर की ड्रॉबैक क्या थी कि अगर कोई कैरी जनरेट हो जाता तो वो ऐड नहीं कर पाता, क्योंकि कैरी में तो 3rd डिजिट हो गया, है ना? अब इस ड्रॉबैक को हमें निकालना था, इसलिए हमारा बना फुल एडर जिसमें वो कैरी को भी कंसिडर करता है। अब मेरे इनपुट में कितने इनपुट है? तो इसका मतलब मेरी कितनी वैल्यूज जनरेट होगी? 2 raised to the power 3 which is 8 कॉम्बिनेशंस, ठीक है? पिछले वाले में मेरे पास 2 इनपुट थी तो मेरे कितने कॉम्बिनेशंस बने थे? 4, 2 raised to the power 2। इधर मेरी इनपुट वैल्यूज 3 है तो मेरे कॉम्बिनेशंस बनेंगे 8। समझ आ गया? ऑल राइट, अब फुल एडर का ट्रूथ टेबल है ये, वी नो दिस। इनपुट कैसे आ रहा है ये तो हमें पता चल गया है। अब इस इनपुट को आउटपुट में हम कैसे बना रहे हैं, ये देखो। जो मेरा एडर फंक्शन है वो कहता है, जो मेरी बाइनरी एडिशन कहती है 0 0 0 0 1, चलो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1, क्या कैरी आया? 0 1 1 0 1, कैरी आया? 0 1 1 0, सॉरी 1 1 1 1 हो गया, 1 0 1 क्या है मेरा? कैरी। सम क्या है मेरा? समझ आ गया ये टेबल कैसे बन गया? समझ आ गया? 0 और 1 ने दिया मुझे 1, फिर 1 और 1 ने मुझे दिया 1 0, जिसमें 1 था मेरा कैरी और 0 था मेरा सम। 0 था सम, 1 था कैरी। कैन वी गेट दिस आउटपुट? लॉजिक जो हमारे पता है, हमें बाइनरी एडिशन का जो लॉजिक पता है उससे ये टेबल बन गया? बन गया ना? आगे बढ़े या बना लोगे? ठीक है। नाउ ये मेरा ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में देखो एक इनपुट आ रहा है, इनपुट एक इनपुट है या 2 इनपुट है या 3 इनपुट है? 3 इनपुट है, x y c इन। आउटपुट कितने हैं? ठीक है, सर्किट पे चले। अब ट्रूथ टेबल से हमने क्या बनाया? के मैप, है ना? जहाँ जहाँ 1 है उन बॉक्सेस में हम मिन टर्म डाल देंगे, हाँ या नहीं? डाल दिया हमने 1 हर जगह। जहाँ जहाँ 1 था, ये देखो सी इन की वैल्यू 1, सी इन की वैल्यू 1, एक्स वाई की वैल्यू 0 0 0 0 1 1 0 0, इधर 1 था ना? ये देखो एक्स वाई की वैल्यू 0 0, सी इन की वैल्यू 1, उस पे सम की वैल्यू क्या है? 1। के मैप देखो 0 0 1 1, ठीक है? फिर 0 1 0 0 1 0, ठीक है? ये 0 1 है ना, एक्स और वाई। ये बॉक्स बनाना आता है तुम लोगों को। ये पिछली क्लास में हमने के मैप वाली क्लास में समझा है कि ये बॉक्स कैसे बनता है, ठीक है? और इसमें हर वैल्यू कैसे आती है। 0 1 0 पे 1, फिर क्या है ये? 1 0 0 1 0 0, ठीक है? फिर क्या है? 1 1 1 1 1 1, ठीक है? हैव वी गॉट दिस मैप?
अब इस मैप का अगर हम अलजेब्रा लिखे तो लिखेंगे ऐसे, इसको क्या लिखेंगे, x डैश y डैश सी इन, x डैश y डैश क्यों है, क्योंकि दोनों 0 और 0 है, इसकी वैल्यू क्या है x डैश y डैश, क्यों, क्योंकि दोनों है 0 0, और सी इन क्या है 1, तो सी इन, ठीक है, प्लस क्या है ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट, तभी हमारा जो टर्म है उसमें वैल्यू क्या आ रही है 1, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या है x डैश y सी इन डैश, ठीक है, x डैश क्योंकि 0 है, y क्योंकि 1 है, सी इन डैश क्योंकि 0 है, ठीक है। कैन वी राइट दिस इक्वेशन नाउ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे थ्रू द रूल्स दैट आई टॉट इन द लास्ट क्लास, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिल जाएगा ये, इधर देखो कितने सारी ऑपरेशंस हो रहे थे, इधर सिर्फ दो गेट्स है ना, ठीक है, ऑलराइट। अब आ जाते हैं कैरी, कैरी को भी हम सिमिलर तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, कैन वी सॉल्व कैरी विद द सेम मेथड, कैरी में 1 कहाँ कहाँ है, इन 3 जगह, 4 जगह है, उन चारों जगहों पे आ गया। अच्छा, एक और ट्रिक बताती हूँ, ये जो है 0 0 1 0 0 1 इज इक्वल टू बाइनरी 1, 0 0 1 इज इक्वल टू बाइनरी 1, ये कौन से बॉक्स में है, बॉक्स नंबर 1, समझ आ गई। अब इधर अगर हम देखें तो दिस इज 0 1 1 0 1 1 इज 3, 0 1 1 इज 3, थर्ड बॉक्स डन, ठीक है, थर्ड बॉक्स डन, 1 0 1 5 डन, 1 1 0 6 डन, 1 1 1 7 डन, ओके। 1 1 1 7 होता है ना बच्चे, हाँ या ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, okay, are we clear? I know there is confusion but we should be clear. अब हमने इसको मिनिमाइज करके अपना अलजेब्रा डिफाइन कर दिया, अब आ जाते हैं सर्किट पे। सर्किट क्लियर, आर वी क्लियर विद द सर्किट? ऑल राइट, हम जब दो हाफ एडर्स को कंबाइन करते हैं, हाफ एडर का सर्किट याद है ना, सिंप्लीफाइड सर्किट, दो हाफ एडर्स को कंबाइन करके हम फुल एडर बना देते हैं। ये देखो, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो इधर इनपुट में जा रहा है, ठीक है। बाइनरी एडर क्या करता है, कुछ n बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो मेरे पास 4 फुल एडर्स है, एफ एज फुल एडर, 4 फुल एडर मिलके कितने बिट नंबर को ऐड कर सकते हैं? बाइनरी एडर दैट प्रोड्यूसेस द अरिथमेटिक सम ऑफ बाइनरी नंबर्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद फुल एडर्स कनेक्टेड इन अ कैस्केड मतलब एक के बाद एक, ओके। With the output carry from each full adder is connected to the input carry of the next full adder. एक का output, next का input in a chain. Note that the input carry C0 is the least significant position, मतलब सबसे least significant, सबसे पहली, okay? ये देखो
सी नॉट सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है. एंटर हुआ, ए नॉट बी नॉट, फुल एडर में 3 इनपुट आए, 3 इनपुट आ गए ना, सी ए बी 3 इनपुट चाहिए ना फुल एडर में. क्या प्रोड्यूस किया इसने? सम, एस नॉट और कैरी. इसका जो आउटपुट कैरी हुआ वो दूसरे का क्या हुआ? इनपुट कैरी. इसका जो आउटपुट कैरी हुआ वो क्या हुआ? इसका इनपुट कैरी. सेम तरीका, सेम तरीका, सेम तरीका. तो मैंने कितने बिट नंबर ऐड किए? मेरे पास 4 फुल एडर है, तो मैं कितने बिट नंबर ऐड कर सकती हूँ? 4 बिट. S0, S1, S3, S2, S3 कितने बिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4. ठीक है, रूल्स पता है? रूल्स पता है हमें? चलो, जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड सी कि ये सम कैसे आया. आई थॉट मैं क्वेश्चन दूंगी बट इसमें आंसर भी था. बट नाउ यू कैन सी हाउ दिस आंसर इज कमिंग. Have we understood this? Really? Can I call someone to solve this? So you haven't understood. Okay? I know it is complicated. Manji, did you understand? Please come here. Please come. Let's give a round of applause for his courage to come here. All right. Okay, okay, done. Done. Manji, can you please explain? चला गया कैरी ऊपर. हमारा सेम प्रोसेस बन जाएगा, वहाँ पे भी 0 हो जाएगा, हमारा आउटपुट बन जाएगा कैरी दोबारा से, फिर वो 1 और फिर ये 1. और ये बीच के 0 कहाँ गए? मैम 0 एडिशन हो जाएगा. एडिशन हो जाएगी. ठीक है, ओके ओके. नहीं करा रहा है वो, शॉर्टकट. फिर वो 0 यहाँ बन जाएगा, वापस बन जाएगा कैरी हमारा यहाँ पे, और 0 बन जाएंगे, कैरी चलेगा हमारा 1, पर हम जो 0 बनेगा ना वो 0 और ये 1 बन गया. और कैरी 1 तो यहाँ आ गया है. ओके okay guys, jokes apart, he did understand the concept. ठीक है. Now 1 and 1 when added produces 1 0. Okay, so 1 goes to the carry and sum becomes 0. Now I am adding 1 to 1, same thing. 1 0 gives me carry 1 and 0. 0 plus 0 gives me 0. बट मेरा कैरी इधर आ गया. द कैरी हैज बीन जनरेटेड. नाउ 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 0 0 1, 1 प्लस 1 1 0 1 0 का 1 कैरी गया. 0 प्लस 1 1 1 1. हैव वी अंडरस्टूड हाउ वीव गॉट दिस सम? I can give you examples related to this, right? All right. Now this is one of your assignment that you will be doing today. So explain half adder and full adder and how you can create a full adder using 2 half adders. Okay? These are important circuits and you should remember this. There are more circuits like your subtractor, your multiplexer, demultiplexer, more complicated circuits which we will be doing in the next classes to come. Today was an introduction to your combinational circuit and we discussed half adder and full adder. Okay, they are very very important. Coming to next part, which is sequential circuit. Okay, I will introduce sequential circuits before I end this class today. So sequential circuit और combinational circuit का difference मैंने क्या बताया था? That in combinational circuit you are only concerned with the current input. You are only concerned with the current input. On the contrary, when we talk about sequential circuit previous output पे भी depend करता है. देखते हैं. आ जाओ block diagram. ठीक है? So the block diagram says I have a combinational logic which is a logic which is generated with combination of logic gates. ठीक है? Logic gates के combination से ही बना है ये circuit.
और मेरे पास एक मेमोरी एलिमेंट। अब मेमोरी एलिमेंट क्यों आया? क्योंकि मेरे को सीक्वेंशियल सर्किट में प्रीवियस आउटपुट स्टोर करना है, प्रीवियस आउटपुट स्टोर करना है। बाइनरी एडिशन में हमने देखा था कि कैसे कैस्केड इफेक्ट से हम ट्रांसफ़र कर रहे थे एक के बाद एक कैरी को, ठीक है। अगर हमारे पास एक मेमोरी होती तो क्या हम उसको स्टोर कर सकते, राइट? तो मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग दीज intermediate elements that are being generated. And of course I have input that creates combinational output, and when it is augmented with or combined with my previous output, it creates my sequential output. Okay, so a sequential circuit consists of a feedback path. Feedback path मतलब जो इसका आउटपुट आ रहा है that is coming to this as an input, ठीक है। फीडबैक का मतलब जो आउटपुट आया वो इनपुट। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैंने अगर आपसे फीडबैक लिया तो आपका आउटपुट क्या होगा? मेरा इनपुट। अंडरस्टूड? अब सीक्वेंशियल सर्किट्स की अगर हम बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंक्रोनस, एक होते हैं एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब सर्किट सिंक में है। सिंक में कब होगा? जब सारे गेट्स, सारा सर्किट एक क्लॉक से कनेक्टेड होगा। मतलब देयर इज अ क्लॉक दैट सेज अब काम करो, अब रोक दो, अब काम करो, अब रोक दो। तो जब वो काम करने के लिए बोलेगी तो सब लोग काम करेंगे, और जब वो बंद करेगी तो सब लोग बंद हो जाएंगे। तो इट इज़ इन सिंक, सिंक में चलता है ना। एसिंक्रोनस का मतलब है देयर इज नो क्लॉक, ठीक है। सब अपना काम कर रहे हैं और बंद हो रहे हैं अपने मर्जी से। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेमोरी टेबल, मेमोरी एलिमेंट स्टोर्स माय प्रीवियस आउटपुट। मेमोरी एलिमेंट स्टोर्स माय प्रीवियस आउटपुट। तो अगर हम देखें मेमोरी एलिमेंट होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच कैन रिमेंबर वैल्यू इनडेफिनेटली, ठीक है। जब तक हम एक्सप्लिसिटली वैल्यू डिलीट ना करें तब तक वो वैल्यू याद रखता है। और चेंज द वैल्यू और कमांड फ्रॉम इट्स इनपुट। जब तक कमांड ना आए या फिर इनपुट ना बदले तब तक वो उसका जो मेमोरी में स्टोर्ड है उस वैल्यू को बदलता नहीं है। ओके, अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट सेट और रीसेट होता है। सेट हो जाता है फिर रीसेट हो जाता है। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल का मतलब है टेबल जो डिफाइन करता है कि मेरे इनपुट से क्या आउटपुट, इट्स लाइक अ ट्रूथ टेबल। सेट की कंडीशन क्या कहती है कि जो मेरी करंट स्टेट है, करंट स्टेट क्या है? नॉट डिफाइंड। और जो मेरी नेक्स्ट स्टेट है अगर मैं सेट कर दूंगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी मेरी? एक्टिव। सेट में एक्टिव हो जाएगी और रीसेट में इनएक्टिव, ठीक है। करंटली मेरी स्टेट क्या है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। मगर जैसे ही मैंने उसको सेट कर दिया तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? एक्टिव, और रीसेट की स्टेट होगी इनएक्टिव। और जो मेरी नो चेंज का केस है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, मेरे को डिपेंडेंसी ही नहीं है मेरी इनपुट पे। ओके, अब मैंने क्या बताया था तुम्हें? एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्लॉक बेस्ड होता है। हमारी जो क्लॉक होती है वो हम ऐसे डिपिक्ट करते हैं, इट्स अ स्क्वायर वेव, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ध्यान लगाना, आई विल नॉट टेक मोर टाइम, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और फिर आई एंड द क्लास, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, एज, लेवल। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। ये क्या है? एज। ये क्या है? एज। लेवल का मतलब होता है सतह, सतह ही बोलते हैं ना। तो ये है मेरा लेवल, ये है मेरा लेवल। अब हम सबको पता है जब हम ऊपर चढ़ते हैं
उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो मेरा ये जो वेव है ये क्या कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये एज है या लेवल है, एज, किनारा। तो ये ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए इट इज अ पॉजिटिव एज। वही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये नीचे उतर रहा है, दिस इज अ नेगेटिव एज। ठीक है, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल। क्लियर हो गया, समझ आ गई कि मेरी जो क्लॉक है इट इज़ अ स्क्वायर वेव और इसके अंदर दो चीज़ें होती है, लेवल और एज, और उसको भी हम दो तरीके से बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास मेमोरी एलिमेंट्स हैं। मेमोरी एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट जिसमें हमारा कुछ डेटा स्टोर होता है। उन एलिमेंट्स के ट्रिगर होने की वजह होती है एज या लेवल। ठीक है, मतलब या तो वो एज पे जब पॉजिटिव एज आता है तब ट्रिगर होती है और तब वो स्टोर करती है, या फिर नेगेटिव, या फिर लेवल पॉजिटिव हुआ तब ट्रिगर हुई और लेवल नेगेटिव हुआ तो तब ट्रिगर हुई। वैसे ही हमारे दो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, लैच और फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, I'll end the class right here today and we can continue from here in the next class. Today you will study about your combinational circuits. How do we create combinational circuits? What is the introduction of sequential circuit? उसमें भी memory element. Okay? Next class we'll start with latch and flip-flop and how they can be used to create a sequential circuit. Thank you.